Good evening, everybody. Very good evening. How's life? Going all fine? Very, very good evening. Great, actually, great. So, जो लास्ट टू लेक्चर्स थे ट्रिगोनोमेट्री के, उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया? एंगल्स, एंगल्स का मेजरमेंट, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी, सेक्टर, सेक्टर की प्रॉपर्टी, सेगमेंट की प्रॉपर्टी, ये सारी हम लोगों ने कुछ वर्कआउट किया। और फिर अभी हम लोग उस स्टेज पर हैं कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया जाए, राइट? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफाइन करें इससे पहले एक और पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है, और वो ये कि अगर हमने बोला कि एंगल इज a physical quantity that measures the amount of rotation between two rays, and assuming that there is a ray OX and there is another ray starting from O which start rotating, right? So definitely it will be framing some angle with OX, and as you keep on rotating, this angle is getting changed and it goes to 90. Further keep on rotating, the angle increases from 90 to 180, and still it keeps on increasing to 270. And then when you complete one rotation, the angle again comes out to be 0, which is equal to 2 pi. So the very first question is, can angle be greater than 2 pi? Can angle be greater than 360 degree? So the answer is yes, because if it is the amount of rotation, then one complete rotation, if one complete rotation is taken, still you can keep on rotating, and therefore the angle can go beyond 2 pi. You can have 2 rotation, 3 rotation, 4 rotation, and so on. You can have n number of rotations, right? Can angle be smaller than 0? That is also true, because if I have set a rotation in anti-clockwise direction, if I keep this as positive, then if you do the other way around clockwise, the angle will be definitely, magnitude will be same, but the sign will become negative because reverse rotation कर रहे हैं आप. तो एंगल जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, एंगल 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है. तो एंगल की जो कंप्लीट मेजरमेंट है उसको करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन और उसका प्रॉपर जनरलाइज्ड फॉर्मेट सेट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं. आप मेंशन करेंगे पॉइंट क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन. क्वाड्रेंट के बारे में तो आपको आइडिया है ही कि two mutually perpendicular lines intersecting at O is called origin, and you have horizontal axis as x-axis, vertical as y-axis, that you all know, right? So let xo x dash and yo y dash be two mutually perpendicular lines. Then the plane divides into 4 parts. Plane gets divided into 4 parts called as quadrants. Means if I have two mutually perpendicular lines, this is y dash, and similarly one horizontal vertical one, and the horizontal one is x dash. It divides the xy plane into 4 parts. This is y. One second.
आई एम सॉरी बेटा, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। अब डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन क्या है? डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन क्या है? ओ क्या है? ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर इज सपोज टू बी स्टेशनरी एट दिस पॉइंट, ऑब्जर्वर पॉइंट है ये। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ है तो चाहे वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा हो, चाहे वो एंगल को मेजर कर रहा हो, वो करेगा तो इसी पॉइंट से। जब उसको डिस्टेंस मेजर करनी होगी तो ओ से वो मेजर करेगा इन एनी डायरेक्शन। तो इफ इट मेजर्स द डिस्टेंस इन horizontal direction rightward, this is positive. Horizontal direction leftward, it is negative. Vertical direction upward is positive. Vertical direction downward is negative. And apart from these four directions, if he measures any distance in any other direction, horizontal right, horizontal left, vertical up, vertical down, any other direction, the distance is positive. Means all other radial directions, the distance is always taken as positive. This is the convention for distance. तो distance का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ इस तरह से मेजर करते हैं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए ऑब्जर्वर कैसे मेजर करेगा डिस्टेंस को? तो इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां और फिर यहां। तो इन ऑर्डर टू रीच दिस पॉइंट P, द ऑब्जर्वर will say that from O one has to go to M, OM. OM is the horizontal distance. Suppose this is X and then vertical up, this is Y. So the coordinate of this point is X comma Y, and X is positive and Y is also positive. But similarly, if it gets to the second quadrant, X is positive, no, X is negative, it goes left then up, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। और any position in the third quadrant will be negative negative, and any position in the fourth quadrant will be positive negative. तो ये तो आप पहले से जानते हैं, तो इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जस्ट रिकॉल कर रहा हूं। अब आती है दूसरी बात कि एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो एंगल मेजर करने के लिए यही ऑब्जर्वर पॉइंट है, और यहां से एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन OX, पॉजिटिव OX है ना, इसके रेफरेंस में एंगल मेजर होगा। O से स्टार्ट होने वाली कोई भी रे है, ऐसे मान लो ऐसे, और फिर ऐसे रोटेट करते हुए मान लो P पर आती है, तो कितना एंगल वो स्वाइप कर रही है, वो एंगल, अगर ये एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा काउंटर क्लॉकवाइज मेजर हुआ, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा इज पॉजिटिव। बट इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज दिस वे क्लॉकवाइज, देन द एंगल, सपोज सेम एंगल थीटा मेजर कर रहे हैं बट क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो थीटा विल बी नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल विल बी नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी हमने पता कर लिया कि एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा, देयरफॉर एंगल वेरीज -2n pi. If you keep on rotating like this, and if you give n rotations, n complete rotation in counterclockwise, the angle will be 2n pi. And if you do n rotations clockwise, then angle will be -2n pi. That means minimum angle is -2n pi and maximum angle is 2n pi, where n can be anything. So angle theta varies in this interval, means I can claim that theta belongs to -2n pi to 2n pi, where n is integer and it can be as large integer as possible. तो n can be tending to infinity, infinitely large integer भी ले सकते हैं, and therefore I will claim that angle varies -infinity to infinity.
तो कोई भी रियल एंगल हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एंगल के वेरिएशन समझ में आ गई, एंगल का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, और डिस्टेंस का मेजरमेंट समझ में आ गया क्वाड्रेंट के फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मान लो ऐसे समझो आप कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लो 3 और ये डिस्टेंस है मान लो 4, तो ये ओपी डिस्टेंस क्या होगी? 3 4, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? 5। अगर ये 4 है और ये -3 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये भी 5 होगी। अब यहां ये नहीं करना है कि ये तो -3 है तो इधर रेडियल डिस्टेंस, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन है, अदरवाइज डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज। तो all radial distances will be 5. Only distance horizontal, right and left and vertical up and down have sign, else all distances are considered positive. तो आई होप ये बात पूरी समझ में आ गई। ओके जी, थैंक यू। तो यही सब बातें जो बताई गई आपके सामने है। साइन कन्वेंशन फॉर एंगल आपको बताई दिया कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, and whereas angle measured in clockwise direction with positive x axis is negative. तो अगर इधर इधर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड रोटेट कर रहे हैं तो नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये तो डिस्टेंस और एंगल का साइन कन्वेंशन हो गया। फिर मैंने ये बात भी बता दी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर उसको नोट कर लिया है तो इट इज डन। कैन वी मूव हैड? नेक्स्ट स्लाइड पर चले बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, कैन एंगल थीटा बी ग्रेटर देन 2 पाई? यस, एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रोटेशंस ओपी हैज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओपी रे है और ये रे रोटेट कर रही है, तो एंगल इस पर डिपेंड करेगा कि कितने रोटेशंस ओपी हैज बीन टेकन। इफ इट हैज टेकन, इफ इट डजंट हैव टेकन one complete rotation, then angle will be 0 to 2 pi, right? But if it has taken complete one rotation and second rotation is in process, then angle will be 2 pi to 4 pi. In third rotation, angle will be 4 pi to 6 pi, and it can go on and on and on. So angle can go from 0 to 2n pi and approaches infinity. The angle can be up to infinity. And similarly, if you do it clockwise rather than anti-clockwise, then angle can go to 0 to minus infinity. If angle is greater than 2 pi, then it can be represented by equivalent angle in range of 2 pi. अब जरा ये बात भी समझो, मान लो ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा ही है। अब आपने क्या किया कि आपने बोला कि अब ये फर्स्ट रोटेशन था ना, यहां से चले और यहां आ गए तो थीटा एंगल हो गया। अब आपने जब यहां से पूरा रोटेट करके वापस यहीं आ गए, तब कितना हो गया? 2 पाई प्लस थीटा हो गया। तो कैन यू से दैट द पोजीशन ऑफ पॉइंट या पोजीशन ऑफ रे, ऐसे बोलो, पोजीशन ऑफ रे ओपी remains same if angle it makes with x axis is theta or 2 pi plus theta or 4 pi plus theta or 6 pi plus theta on and on 2n pi plus theta or minus 2 pi plus theta or minus 4 pi plus theta. Do you agree or not? This is my question.
थीटा पर जो पोजीशन होगी ओपी की 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, ये सभी केसेस में पोजीशन सेम होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। जैसे -2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आप यहां से चले, ऐसे रोटेट करें, ये हो गया -2 पाई प्लस थीटा, मतलब ऐसे यहां आ गए फिर से। ऐसे अगर डबल रोटेशन दिया क्लॉकवाइज में तो -4 पाई हो गया प्लस थीटा। कहने का मतलब है कि बाय गिविंग इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई रोटेशन द पोजीशन डजंट चेंज। अगर किसी एंगल में 2 पाई का मल्टीपल ऐड करो तो पोजीशन एंगल की चेंज नहीं होगी, एंगल चेंज होगा बट रे की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि फिजिकली यही एंगल, जो एंगल को आप थीटा बोल रहे हो उसी को आप 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हो, उसी को आप 4 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर एंगल। इसको हम पर्टिकुलर एंगल बोलते हैं, जो गिवन है पर्टिकुलर एंगल। और किसी भी पर्टिकुलर एंगल के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंगल कैन बी डिफाइंड। ये सब इक्विवेलेंट टू दिस थीटा, और इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो एक नोट करके लिख दो बेटा, टू ऑब्टेन जनरल वैल्यू ऑफ एनी एंगल, जनरल वैल्यू ऑफ एनी एंगल थीटा, add 2n pi to it। तो थीटा जनरल विल बी इक्वल टू 2n pi प्लस थीटा पर्टिकुलर। याद रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं, फाइंड द जनरल वैल्यू फॉर पहला केस 0, दूसरा केस π/2, तीसरा केस पाई, चौथा केस 3π/2। जल्दी बोलो, ये चारों एंगल की जनरल वैल्यू बताओ। हाउ टू गेट द जनरल वैल्यू ऑफ दीज 4 एंगल्स। किसी भी एंगल की जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया? वी हैव टू ऐड मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2n पाई टू दैट एंगल। तो 0, π/2, पाई और 3π/2 की जनरल वैल्यू क्या होगी? तो 0 की जनरल वैल्यू क्या होगी बेटा? 2n पाई प्लस 0, 2n पाई। n कैन बी एनी इंटीजर, वेयर इन सभी केसेस में n कैन बी टेकन एज एनी इंटीजर, n इज सम रैंडम इंटीजर। तो मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, ये सभी जीरो है, जीरो के इक्वलेंट है। जब आप 2n पाई बोलते हो तो उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, है ना? और ये सारे एंगल जीरो के इक्वलेंट है। ऐसा π/2 का नहीं, देव ऐसे नहीं लिखते बेटा। 2n पाई अगर पाई के टर्म्स में रेडियन में लिख रहे हो तो उसको डिग्री में मत लिखो ना। π/2 क्या आंसर क्या लिखेंगे? इसका जनरल वैल्यू होगा 2n पाई प्लस π/2। पाई का क्या होगा? 2n पाई प्लस पाई, और इसका क्या होगा? 2n पाई प्लस 3π/2। तो एक तरह से आपको मैं बोलूंगा कि ये एक टेबुलर, ये टेबल को याद रखो। यहां एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को याद कर लो। ये बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश करो कि ये आपको बिल्कुल क्रैम हो जाए। यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं और इधर दूसरे कॉलम में उसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे।
4 एंगल ऐसे हैं जिनकी जनरल वैल्यू हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल थीटा और यहाँ पर जनरल वैल्यू 0 2n पाई 2k पाई, कुछ भी बोल सकते हो, पाई/2। पाई/2 का क्या आया, तो ये जो है ना, ये इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो पाई कॉमन लेकर के, तो आएगा 4n+1 पाई/2। ध्यान से देखना, 4n+1 पाई/2 एंड पाई जो है इसको पाई कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। और 3 पाई/2 क्या होगा, 3 पाई/2, 3 पाई/2 का क्या आएगा, तो 2n पाई प्लस पाई/2। तो एक्चुअली अगर करोगे ना 4n+3 पाई/2 आएगा। एलसीएम लो, 4n+3 पाई/2। अब एक पैटर्न है, ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से समझो, तो जिसको आप 2n पाई बोल रहे हो ना, 2n पाई, इसको मैं एक सेकेंड के लिए रीराइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने बोला पहला था 2n पाई ना, 2n पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4n पाई/2, 4n पाई/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 4n टाइम्स पाई/2 है, ये 4n+1 टाइम्स पाई/2 है। ये क्या है, इसको भी अगर थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4n+2 टाइम्स पाई/2, और ये 4n+3 टाइम पाई/2। तो प्लीज लुक एट दी मल्टीपल ऑफ पाई/2। यहाँ 4n है, यहाँ 4n+1 है, ये 4n+2 है, ये 4n+3 है। कुछ याद आया? किसी भी नंबर को अगर आप, किसी भी इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट n होगा और रिमाइंडर r होगा, और r की वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो ये पूरा इंटीजर मल्टीपल पाई/2 की बात, पाई/2 के जितने भी इंटीजर मल्टीपल होते हैं उनमें से 4 कैटेगरीज बन गई है ना। 2n पाई, 4n पाई/2 का मतलब क्या है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये सारा हटा रहा हूं। अब मैं डायग्राम पर दिखा रहा हूं आपको कि किस पोजीशन में क्या एंगल होगा और उसकी जनरल वैल्यू क्या है। अगर आपके पास में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और हम एक रे की बात कर रहे हैं, तो 4 पोजीशंस बोल रहे हैं, 4 स्टैंडर्ड पोजीशन है रे की। इसमें से एक स्टैंडर्ड पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और एक वर्टिकल पोजीशन है। और हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में अगर इधर ये एंगल है तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं ना, 0, और इसी को 2n पाई बोलते हैं। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं पाई/2। पर्टिकुलर वैल्यू है पाई/2, बट इसकी जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू क्या है, ये वाली देखो, ये 4n+1 पाई/2, 4n+1 पाई/2। ये 2n पाई या इसी को 4n पाई/2 भी बोल दो, 4n टाइम्स पाई/2। और जब इधर आ गए, इधर मतलब पहला तो नो रोटेशन था, अब ये वाला रोटेशन हो गया, फिर ये वाला रोटेशन हो गया, ये वाला, ये क्या है, तो ये है पाई 180 डिग्री, या इसी को बोलते हैं, बोलो, 2n+1 पाई, 2n पाई प्लस पाई, या इसी को बोलेंगे 4n+2 टाइम्स पाई/2। और जब हम इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ये पोजीशन ऐसे देखो, यहां से ऐसे रोटेट करते हो यहां इतना, तो ये पोजीशन एक्चुअली है 3 पाई/2, राइट। इसी 3 पाई/2 का जनरल फॉर्म करते हैं तो 2n पाई ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 4n+3 टाइम्स पाई/2। तो 4n पाई/2, 4n+1 पाई/2, 4n+2 पाई/2 एंड 4n+3 पाई/2, और फिर वापस आएंगे तो ये फिर से 2n पाई, यहीं पहुंच जाएंगे, 4n+4 पाई/2, दैट इज 4 टाइम्स k पाई/2, ऐसा। तो ये 4 जो है एंगल्स और उनकी पोजीशन, जनरल पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी। तो if one moves around a circle after every 2 pi angle he reaches the initial angle, that's why theta is 2n pi plus theta. 2n pi plus theta is called general value. Theta belongs to 0 to 2 pi. N is called positive integer. Here you can say n is any integer, not necessarily positive integer. N can be any integer. And finally pi by 2 या 4k plus 1 pi by 2 सेम है, पाई या 2k plus 1 pi सेम है, 3 पाई बाय 2 या 4k माइनस 1 पाई बाय 2 बोलो या 4k प्लस 3 पाई बाय 2 बोलो, दोनों सेम ही है। एंड 2 पाई को 2 के पाई लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब आती है बात कि जब ये एंगल का कन्वेंशन समझ में आ गया, डिस्टेंस का समझ में आ गया, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन किए गए। तो अब आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ओरिजिन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, they are also known as circular functions. अब आपने जैसे भी पढ़ा होगा 10th में, उसमें और अभी जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। 10th में आपने क्या पढ़ा था, देखो 10th में ऐसे पढ़ा था कि इफ यू हैव अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड, मैं 10वीं वाली बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो suppose this one, the horizontal side is called base, vertical side is called perpendicular, this is right angle, this is called hypotenuse। बहुत सारे बच्चों ने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। ऑल्दो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर भी अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं है। दिस इज समहाउ फॉल्टी। फॉल्टी ये कि जो बेस और परपेंडिकुलर है, ये ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वन इज कॉल्ड बेस एंड वर्टिकल वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। they can get changed or interchanged, that all depends upon with respect to which angle we are talking about, right? क्या नहीं चेंज होगा, कौन सी चीज एब्सोल्यूट है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अदर देन 90 डिग्री, other than 90 degree, there are two angles in right angle triangle. Suppose this I am taking as angle theta, and with respect to theta I am talking about, then with respect to theta, theta is always framed by two lines. One is hypotenuse, other than hypotenuse the line is called base. तो अगर थीटा एंगल के लिए आप बोलोगे तो हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है, और थीटा के जो वर्टिकली अपोजिट है ये परपेंडिकुलर है, हाइट जिसको बोलते हैं। बट अगर यही डेफिनेशन आप इस एंगल के लिए दो, अल्फा के लिए, तो अल्फा एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज के साथ जो दूसरी साइड है इस एंगल को बनाने वाली, उसको बोलते हैं क्या, इसको बेस बोलेंगे। तो फॉर अल्फा, अब अगर मैं इसको नेम कर दूं ए बी सी, तो फॉर एंगल बी बेस क्या है, बेस इज ए बी, एंड ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड इज AC। yes, and for angle C the base is AC and altitude is AB। अच्छा जी, फिर आपने इसी के बेसिस पे 6 फंक्शन डिफाइन किए थे। वहां पर क्या क्या था, एक बोला था साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, बोलो साइन थीटा। तो आपने बोला था इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर क्या था, AB बाय AC, AB बाय BC, सॉरी,
and cos theta base by hypotenuse, base by hypotenuse, and base क्या है AC by BC, और फिर इसी से इनके रेसिप्रोकल से सीकेंट और कॉसिकेंट थीटा डिफाइन किया था, और इनके रेशियो से टेंजेंट थीटा डिफाइन किया था, और उसके रेसिप्रोकल से कॉटेंजेंट डिफाइन किया था। वो सब बातें ठीक है, अपनी जगह पर है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम यही डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो y sin theta is negative, y sin of theta is negative for some angle, because in this definition if the perpendicular, hypotenuse and bases are the sides of a triangle, length of side of the triangle, then length can't be negative, and therefore sin theta cos theta can never be negative for any angle theta if I go by this definition. But it is not true. There are many angles for which the sin and cos are negative, for some angle it is positive. So in order to understand why that is negative, you have to go and look at the actual definition of ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो क्या है एक्चुअल डेफिनेशन, क्या है, अब हम उस पर जा रहे हैं। एक्चुअल डेफिनेशन जो ट्रिगोनमेट्रिक एंगल्स की है वो कुछ इस तरह से है। वी विल कंसिडर अ सर्कल, सो लेट्स कंसिडर, ऐसे लिखते जाइए फटाफट, लेट्स कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 ले लो एंड सेंटर ओरिजिन 1 रेडियस और ओरिजिन सेंटर को लेकर के एक सर्कल कंसीडर कर लिया हमने, और इस सर्कल का एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर लिया OX और एक वर्टिकल डायमीटर लिया OY। Now consider a point on this circle anywhere, say this is point P, and from P if you drop a perpendicular on horizontal diameter OX and join OP, you will always get a triangle which is right angle. Agreed? For this right angle triangle OP, suppose the perpendicular from P to OX is M, foot of perpendicular is M, PM. So OPM is a right angle triangle, and suppose this OP makes angle theta with X axis, right? So if you go by the same definition, जो definition आपने बोली, what is sin theta? Sin of theta will be equal to इस एंगल का लिए परपेंडिकुलर PM अपॉन OP, वेरी गुड, PM अपॉन OP। बट ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था सबसे पहली लाइन मैंने क्या बोली थी, लेट, क्या लिखवाया मैंने, लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर ओरिजिन। अगर इस सर्कल का रेडियस 1 है तो आप ये जानते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा PM अपॉन OP। OP तो 1 है क्योंकि रेडियस तो हमने 1 ले लिया है, तो इट इज इक्वल टू PM अपॉन 1 एंड दैट इज PM। तो PM ही साइन थीटा हो गया। और PM क्या है, PM इज एक्चुअली, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट x, y, ध्यान से सुनो, तो व्हाट विल बी y, क्लियरली y विल बी साइन ऑफ थीटा। एग्रीड और नॉट? अरे y PM है और PM क्या है, साइन थीटा है। एंड सिमिलरली इफ यू डिफाइन cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा OM बाय OP। एंड OM क्या है, OM है, और OP क्या है, 1 है। तो OM जो आ गया वो बेसिकली आपका cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो x जो है, x इज cos थीटा।
तो हमने ये बोला कि इफ यू गो बाय द साइन कन्वेंशन एंड ऑफ एंगल एज वेल एज डिस्टेंस, देन x coordinate of the point P on this unit circle will be cos theta and y coordinate will give you the value of sin theta. तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जब पॉइंट यहां होगा, यहां पर, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, नो 1 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और इस पोजीशन पर एंगल क्या होगा बेटा? अब जरा ध्यान से समझना। अब मान लो ये थीटा है, अब यहां ऐसे थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, थीटा लेस हो रहा है। थीटा कम हो रहा है तो क्या कम हो रहा है? y कोऑर्डिनेट कम हो रहा है और x कोऑर्डिनेट बड़ा हो रहा है। देखो, जैसे जैसे आप थीटा को रिड्यूस कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एंड x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग। मानते हो कि नहीं मानते हो? और जैसे ही थीटा 0 आ गया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1। और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। इससे क्या पता चलता है? इससे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट इज 0। 0 डिग्री का साइन 0 होगा, या 0 रेडियन का साइन 0 होगा। और कोसाइन ऑफ 0 क्या होगा? 0 रेडियन एंगल हो गया, तो कोसाइन मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1। और इसी से यह भी पता चल रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 रेडियन टू π/2, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से π/2 की तरफ इंक्रीज करते हैं, तो आप देखोगे क्या इंक्रीज कर रहा है? x कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है और y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है। तो आप बोलोगे x डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। वेयर एज y के साथ क्या हुआ? बोलो बेटा। y इंक्रीजेस इट्स वैल्यू। 0 पर y क्या था? 0। 0 डिग्री पर y क्या था? 0। y इंक्रीजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1। इससे आप ये जजमेंट ले सकते हो कि जब इन्हीं वैल्यूज को जब प्लॉट किया गया ना, तो प्लॉट करने पर साइन और कोसाइन के बारे में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया। एक्स एक्सिस पर अगर हम एंगल थीटा को प्लॉट करें, और वाई एक्सिस पर जैसे हम आउटपुट प्लॉट करते हैं, तो वाई एक्सिस पर हम मान लो साइन थीटा प्लॉट करें, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, तो हमको क्या मिल रहा है वो देखो। जैसे ये 0 है और ये मान लो π/2 है, π/2, तो ऐसे π/2 मिडिल में आएगा π/4, है ना। और इसके यहां पर कहीं आएगा π/3 60 डिग्री, और यहां पर कहीं आएगा π/6, है ना, π/6 भी आएगा 30 डिग्री। तो 0 पर वैल्यू 0 होती है, 30 पर वैल्यू हाफ होती है, ये मान लो 1, π/2 पर वैल्यू 1 होती है, π/2 पर 1, ऐसा मान लो ये 1 है। तो मैंने एक y को 1 लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां से देखो, थोड़ा सा साइन का ग्राफ का आइडिया भी मिल जाएगा तुम्हें अपने आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। π/2 पर साइन की वैल्यू क्या हुई थी? 1। और 0 पर 0 डिग्री पर साइन मतलब y, जब मैं साइन ऑफ थीटा बोलूं, तो आप थीटा की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट देखना इस पॉइंट P का। ये पॉइंट P ऐसे सर्कल पे मूव करेगा, यूनिट सर्कल पे, y कोऑर्डिनेट देखना है आपको। तो जब मैंने थीटा 0 बोला, साइन 0, तो आप 0 डिग्री एंगल पर y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो यहां पर 0 आ गया वैल्यू। फिर मैंने बोला π/2, एंगल π/2, तो ये थीटा को बढ़ा के 90 करेंगे, तो यहां आ जाएगा पॉइंट P पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1। तो ये देखो 0 का π/2 1 हो गया। π/2 इनपुट पर 1 आउटपुट है, और 0 इनपुट पर 0 आउटपुट है।
और आपने क्या बोला कि y मीन्स साइन थीटा इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 एज थीटा वेरीज 0 to π/2। तो π/6 पर वैल्यू हाफ होती है, यहां आ जाएगा। π/4 पर वैल्यू 1/√2 होती है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। π/3 पर वैल्यू √3/2 होती है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर ये सारे पॉइंट को आप प्लॉट करोगे ना ऐसे, इन सारे पॉइंट को जब हम इकट्ठा करते हैं ऐसे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे स्मूथ कर्व से, तो ऐसा एक ग्राफ मिलता है, ऐसा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ किसका है? साइन ऑफ थीटा का ग्राफ है। क्या आपने देखा कि जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से लेके 1 तक। जब एंगल वेरी कर रहा है 0 से π/2, तो थीटा 0 से π/2, साइन थीटा की वैल्यू ऐसे हाफ एंड 1/√2, देन √3/2, देन 1, ये 1 हो गई। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से कॉस थीटा के बारे में क्या पता चल रहा है वो भी देखो। यहां पर कॉस थीटा क्या बोला था आपने? 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या? 1। तो ये यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये 0,1 से। और कॉस की वैल्यू बता एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना ऐसे पॉइंट, ऐसे यहां से इधर जा रहा है ना पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका कम हो रहा है और वाई बढ़ता जा रहा है, तो ये डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आएगा। π/6 पर होता है √3/2 और π/4 पर 1/√2, यही आ जाएगा सेम। तो ये ग्राफ 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, या पहले से आपको पता है 10वीं में, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। और फिर यहाँ वैल्यू ये आ जाएगी और फिर ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब द कोसाइन का ग्राफ ऐसे डिक्रीज करते हुए ऐसे ऐसा हो जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, कोसाइन ऑफ थीटा है। और जो जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया ये क्या है? ये साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में मैंने डिस्कस किया कि कैसे ये चीज हो रही है। अब इसी के रेशियो से, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो रेशियो है ये हो गया, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। और वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये तुम्हारा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेजर होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं। फिर इन्हीं तीनों फंक्शन के रेसिप्रोकल जो हैं, साइन से कोसाइन थीटा, सॉरी कॉसेकेंट थीटा होता है, ये 1/sin थीटा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। एंड कॉस का रेसिप्रोकल से सीकेंट थीटा डिफाइन किया गया, ये क्या है? 1/cos थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और tan का रेसिप्रोकल से कॉटेंजेंट थीटा, और ये होता है 1/tangent थीटा, एंड देयरफॉर इट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो these are the 6 functions of angle theta defined. Why they are called function of theta? Because by changing the value of angle theta, you can see by changing the theta, the dimension of this triangle changes. ये triangle जो है, ये ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो थीटा पर डिपेंड कर रही हैं, थीटा को चेंज करने से वो वेरी कर रही हैं। तो थीटा हो गया इनपुट और ये साइड के लेंथ हो गई आउटपुट, इसलिए साइड्स के रेशियो भी हो गए आउटपुट। तो आउटपुट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इनपुट, इसलिए इनको हम साइन फंक्शन ऑफ थीटा, इसको कॉस फंक्शन ऑफ थीटा, इसको टैन फंक्शन ऑफ थीटा, इसको कॉसेकेंट फंक्शन ऑफ थीटा, इसको सीकेंट फंक्शन ऑफ थीटा, इसको कॉटेंजेंट फंक्शन ऑफ थीटा बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? आज की क्लास में कुछ भी नहीं, आप कोई प्रॉब्लम करने का लोड नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सिर्फ समझ डेवलप करो ये सारे फंक्शंस की। अच्छा एक और बात, अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ मुझे बताना आप, ठीक है? व्हाट विल हैपन इफ थीटा बिलोंग्स टू
π/2 to pi, if theta varies π/2 to pi, अगर थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी हो गई तब क्या होगा? अब जैसे देखो यहाँ ये थीटा यहाँ था, ऐसे ऐसे रोटेट करते जा रहे थे, अब 90 पर तो cos 90 0 हो गया, sin 91 हो गया, अब यहाँ चले आए मान लो यहाँ। अब इस पोजीशन के लिए इधर देखो पॉइंट P यहाँ आ गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, PM ऐसे आ गया। एंगल हमारा कौन सा है बोलो? कौन से एंगल को अब हम थीटा बोल रहे हैं? ये एंगल थीटा है ये, क्योंकि थीटा हमेशा मेजर होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना है। अब इस एंगल अब थीटा की वैल्यू क्या है? π/2 से ये एंगल बड़ा है, पाई से छोटा है। इस केस में P लाइज इन पॉइंट P लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां से ये बात क्लियर, यहां से ये बात क्लियर कट प्रूव हो गई कि नहीं हो गई कि सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल के लिए कोसाइन थीटा नेगेटिव होगा और साइन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कोसाइन थीटा है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। यहीं से और एक और बात मुझे बताओ, कहना इससे ये आप लिखते जाना, जितनी बातें मैं बात कर रहा हूं, जैसे जो सारा डिस्कशन यहां किया, इफ थीटा इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 से π/2, x डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 एंड y इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। x मतलब साइन, x मतलब cos थीटा और y मतलब साइन थीटा। तो जो कुछ मैं x के बारे में बोल रहा हूं वो cos थीटा की वैल्यू के बारे में बोल रहा हूं, जो मैं साइन के बारे में बोल रहा हूं दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू के बारे में बोल रहा हूं y के लिए। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एंगल बड़ा हो रहा है तो क्या देख रहे हो आप? एंगल जब बढ़ाते जा रहे हो π/2 से पाई की तरफ, तो x क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना, x नेगेटिव हो गया तो x डिक्रीज कर रहा है, बट y भी डिक्रीज कर रहा है ना? x भी डिक्रीज कर रहा है और y भी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे x दैट इज cos थीटा, बोलते जाओ, x विच इज इक्वल टू cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम, यहां ऑलरेडी x 0 हो चुका है, 0 to -1, एंड y दैट इज sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 90 पर 1 हो चुकी थी। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, क्योंकि यहां आते आते x कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा 180 पर। तो बेसिकली हमें यहां से क्या कॉन्फ़िगर हुआ कि एक आइडिया मिल गया कि जब साइन की वैल्यू यहाँ 0 थी, 0 से इंक्रीज करते करते 1 हुई, 1 के बाद साइन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करेगी, सिमेट्रिकली डिक्रीज करेगी ऐसे, और डिक्रीज करके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कहां पर? पाई पर। और कोसाइन की वैल्यू 0, कोसाइन 0 1 था और कॉस की वैल्यू कम हो रही थी ऐसे, 90 पर cos 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट वैल्यू है और x कोऑर्डिनेट इनपुट है, तो π/2 पर cos 0 हो गया और इसके बाद cos नेगेटिव हो गया, यहां से देखो डिक्रीज करते हुए नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, और 180 डिग्री पर cos हो जाएगा -1, तो ये है पाई -1। तो चलो ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि 90 के ऊपर कैसे कन्वर्जन होता है, उसे बाद में, लेकिन आप यही इसी फेजर डायग्राम से देख सकते हो कि क्या होगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो cos थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और sin थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो गया तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा। सेंस समझ में आ रही बात? तो जो आप 10वीं क्लास में वो रट्टा लगाते थे ना, ASTC
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेकेंट पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कॉस पॉजिटिव और बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती थी। अब वो क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे दिख रहा है जब साइन और कॉस पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन्हीं के रेशियो से सारे बनेंगे, इनके रेसिप्रोकल से, तो सारे पॉजिटिव आ गए। यहां पर कॉस के नेगेटिव होने से सीकेंट नेगेटिव हो गया, साइन बाई कॉस पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो टैन भी नेगेटिव हो गया। तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो सारी बातें अब आपके लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि अब नाउ यू नो व्हाई इट इज, नाउ यू नो व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज। सो तो कैन वी गो अहेड? इतनी बातें सारी समझ में आ गई? एक बार मुझे बता दो बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन समझ में आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, उनका साइन, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, वो सारी बातें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई। तो अब आपको कॉफी में शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लिया? तो मैं इस स्लाइड को चेंज करके आगे चल रहा हूं। ओके ठीक है। तो अभी अब कुछ भी नोट नहीं कर रहा, जस्ट जो बातें मैंने बताई, मैंने सर्कल लिया, सर्कल में पॉइंट पी लिया, एक्स वाई वाई आर, आर लेके चलेंगे ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा हो जाएगा, वाई आर साइन थीटा हो जाएगा। तो आर को 1 कर देंगे तो एग्जैक्टली एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, वाई साइन थीटा। तो जब मैं बोलूं कॉस थीटा तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखना, और जब मैं बोलूं साइन थीटा तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखना, सर्कल 1 यूनिट रेडियस के सर्कल पे। तो ये सारा डिफाइन हो गया, ये सारी बातें क्लियर है, इसको छोड़ो। साइन थीटा वाई अपॉन आर है, वाई अपॉन आर, आर 1 है तो वाई, कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, रेसिप्रोकल ऑफ साइन को कॉसेकेंट थीटा बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन को सीकेंट थीटा बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट को कॉटेंजेंट थीटा बोलते हैं। And depending upon sign of x and y, trigonometric ratio will change their sign as angle theta varies from 0 to 2 pi। ये आपने देख ही लिया। तो फाइनली जो आया कि क्वाड्रेंट 1 के किसी भी एंगल के लिए ऑल फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू, क्वाड्रेंट 2 के किसी भी एंगल के लिए मींस एंगल थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 के बजाय पाई बाई 2 टू पाई हो जाए तो साइन और कॉसेकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे एंड रिमेनिंग सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि थर्ड में साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा, इसलिए टैन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ में कॉसेकेंट मतलब कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव होंगे। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक्निकली कैसे इवॉल्व हुए। अब एक और पॉइंट यही से देखो, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं, आप लिखेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी, तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो अगर आप इसी सेम डायग्राम को ऑब्जर्व करो, इसी सेम डायग्राम पर if I consider this as angle theta and this is definitely y and this is x, so for angle theta this is x and this is y, the point is x comma y and here it is 1। तो क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मानते हो कि नहीं मानते हो? इन ट्राइंगल ओपीएम
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है कि नहीं? Therefore cos square theta plus sin square theta 1, and divide by cos square theta, तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू secant square theta. एंड ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट से ये सेकेंड डिराइव किया, और फर्स्ट से इफ यू डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा तो आपको क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन से के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा. तो ऐसे ये जो पहली आइडेंटिटी है इसको ऐसा रीअरेंज करके वेरियस वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जैसे इसी आइडेंटिटी से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर. तो वहीं से ये भी कंक्लूड हो गया, वहीं से ये भी कंक्लूड हो गया, वहीं से ये भी कंक्लूड हो गया. तो आपको ये सारे फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना चाहिए. इसी तरह से यहां से देखो, यहां से भी दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है. सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, यहीं से आप बोल सकते हो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि इसके फैक्टर कर दिया. सीकेंट माइनस tan इंटू सीकेंट प्लस tan का प्रोडक्ट 1 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है. तो यहां से यही से ये भी आ गया. इतना ही नहीं, इसी से एक और ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो. आप लिख सकते हो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये देखो 1 को उधर ले जाओ. तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर. तो जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे क्वेश्चन का, 10वीं के क्वेश्चन जी जो करते थे, तो बोलते हैं ना कैसे स्ट्राइक किया कि ऐसा करना है. तो आप ये अगर चीजें, ये फॉर्मूले को, ये आइडेंटिटी को अगर डिफरेंट तरीके से आप इसके साथ प्ले करेंगे तो ये सब इक्विवेलेंस समझ में आएंगे कि ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है. तो वहां पर आपका स्ट्राइक करने का रेट बढ़ जाएगा. इसी तरह से ये वाले केस में आप खुद बोलो कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है. इसका मतलब है कि कॉसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अगर है तो इसको आप 1 अपॉन कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हो. इतना नहीं, आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा. यहां से देखो इसको 1 उधर, और यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन इधर से कॉट इधर ले आओ, एक कॉट का फैक्टर, और ये कॉट थीटा यही रहने दो और कॉसेकेंट थीटा प्लस 1. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये सारे, ये सारा डिस्कशन था, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन आइडेंटिटी. क्योंकि व्हाई इट इज कॉल्ड पाइथागोरियन आइडेंटिटी? बिकॉज ये आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की है
इनका ओरिजिन बिगिनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन है, इसलिए इनको पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जितनी बातें आज डिस्कस हुई, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करो, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया तो मैं स्लाइड चेंज कर दूं बेटा, जस्ट गिव मी योर कंसेंट। ठीक है जी, आप मुझे अगर नोट कर लिया तो यस बोलना। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया तो यस। बेटा ये 10th का रिवीजन है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, स्पेशली ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी को, क्योंकि 10वीं में आपने बहुत डिटेल में ये सब किया हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो कुछ आपने एज ए फार्मूला क्रैम करके प्रैक्टिस करके सीखा है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझाना, कि उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ। तो 4 बच्चों ने बोला कि अभी नोट नहीं किया, आपका हो गया बेटा, तो ठीक है, यक्ष का भी हो गया, राइट। आकांक्षा हो गया बेटा, सबका हो गया, फिर मैं चेंज कर दूं? योगेश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से बेटा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर द गिवन एंगल। ये जो एंगल दिया गया है, इस एंगल, इन एंगल्स के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कॉसेकेंट, उनमें से कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है? तो किसी एंगल के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस एंगल की क्वाड्रेंट लोकेशन जाननी होगी। हाँ, तो एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है टू फाइंड द साइन ऑफ एफ थीटा where f x can be sin x, cosine x, tan x, ऑन एंड ऑन। सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द क्वाड्रेंट लोकेशन, फाइंड द क्वाड्रेंटल लोकेशन ऑफ थीटा। ऑफ एंगल थीटा, मतलब आपको थीटा को ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब राइट थीटा एज 2k पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज एक्यूट एंगल। उससे आपको क्वाड्रेंट की पोजीशन मिल जाएगी। अल्फा इज एक्यूट एंगल है, अल्फा एक्यूट एंगल नहीं बोलो, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ऐसा बोलो, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। और फिर अगर अल्फा 0 से पाई बाई 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, पाई से 3 पाई बाई 2 आया तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई अल्फा हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और जैसे क्वाड्रेंट लोकेशन मिल गई तो आंसर आ जाएगा। जैसे 225 कितना है, 225, 225 एंगल को हम जानना चाहते हैं, तो देखो ऐसे रोटेट करते हो, ये आ गया 180, 180 के बाद 45 यहां आ गए, यहां, ये 225 है, दिस एंगल इज 225। कौन से क्वाड्रेंट में है? तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पोजीशन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो आप बोलोगे tan, tan ऑफ 225 डिग्रीज पॉजिटिव, cot ऑफ 225 डिग्रीज पॉजिटिव,
and rest all sine 225, cosine 225 and secant 225 and cosecant 225 is all negative. बिल्कुल सही. तो आई रिपीट, क्या करना है, पहले उस एंगल का क्वाड्रेंट लोकेशन देखना है, फिर उस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट लोकेशन देखने के लिए क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि एंगल को 2k पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखो. अल्फा 0 से 2 पाई ओपन में कोई एंगल होगा, फिर अल्फा अगर 0 से पाई बाय 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई बाय 2, थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आप पहले क्वाड्रेंट की लोकेशन देख लो, फिर उस क्वाड्रेंट में साइन क्या है आप देख लो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है. ऐसे ही बी पार्ट, -585 के लिए क्या करोगे, वेल डन. तो 585 पहली बात नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना. तो 585 कितना है, तो 360, यह है -540 प्लस -45. 540 कितना होता है बेटा, तो ऐसे देखो मैं दिखा रहा हूं कि कैसे रोटेशन होगा. इधर देखो ये है 0, अब ऐसे रोटेट होगा, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, 1 कंप्लीट रोटेशन दिया तो आ गया 360. अब 360 के बाद 180 और ले गए तो आ गया 540. 360 प्लस 180, 540 के बाद 45 डिग्री नेगेटिव में और घुमाया तो आ गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट. कहां है इसकी पोजीशन, पोजीशन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. कैसे, तो आप ऐसे बताना, ऐसे इट गोज दिस वे, ऐसे. अब ये इस पोजीशन पर आपका जो क्वाड्रेंट बता रहा है कि साइन क्या होगा, हाँ साइन इज पॉजिटिव, कॉसेकेंट इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, tan theta is negative, cot theta is negative and secant also negative. Theta is 585 डिग्री. तो 585 डिग्री नेगेटिव 585 के लिए cos, sin, tan, cot, secant, cosecant की वैल्यू का साइन क्या होगा, समझ में आ गया. अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप किसी भी एंगल के लिए उस एंगल के साइन, कोसाइन, टैन, कॉट वगैरह की वैल्यू बता सकते हैं. तो एक हुआ कि मेरी बात ध्यान से सुनो, एंगल की वैल्यू से उस रे का क्वाड्रेंट पता चलना चाहिए, उसका मेथड मैंने बता दिया. क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि जो रे का टर्मिनल पॉइंट P है, P, OP इज द रे एंड P इज द टर्मिनल पॉइंट. टर्मिनल पॉइंट P की लोकेशन पता चलेगी कि कौन से क्वाड्रेंट में है. तो उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा और sin थीटा पता चल जाएगा, और उसके बाद तो सब कुछ पता चल जाएगा. तो जब हम एंगल के रिस्पेक्ट में cos और sin का कोऑर्डिनेट, cos एंड sin का सिग्नेचर मतलब उसका पॉजिटिव या नेगेटिव पता कर सकते हैं, तो आप उल्टा भी तो कर सकते हो. अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन बता दूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये पता कर सकते हैं, या टर्मिनल पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं. तो उल्टा काम भी कर सकते हैं, ठीक है. जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनो. इन व्हाट क्वाड्रेंट डज द टर्मिनल पॉइंट लाई. टर्मिनल पॉइंट रे का या टर्मिनल पॉइंट ओपी का किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अगर साइन एक्स पॉजिटिव है और सीकेंट एक्स पॉजिटिव है. अब जैसे ही देखो, जैसे ही आपको बोला कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है और सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव है. एक्स एंगल है बेटा, यहां पर थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह एक्स है हियर इन दिस क्वेश्चन. तो साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड. और सीकेंट पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ.
दोनों पॉजिटिव कहां पर होंगे, साइन और सीकेंड दोनों पॉजिटिव कहां पर होंगे, तो कॉमन फर्स्ट पे, खत्म हो गया। तो पहले केस में ए पार्ट का आंसर क्या है, टर्मिनल पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल पॉइंट मतलब एंगल, है ना, एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा टर्मिनल पॉइंट उसी क्वाड्रेंट में होगा। टर्मिनल पॉइंट मतलब ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट बोल रहे हैं। ए हो गया। अब बी अपने आप बताओ, आप कॉसेकेंट, कॉसेकेंट नेगेटिव, हाँ कॉसेकेंट नेगेटिव कहां पर होता है, तो थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे चीज नीचे लिख दो, थर्ड एंड फोर्थ। और कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ। तो दोनों बातें किस क्वाड्रेंट में सही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेकेंट भी नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव भी है, तो मतलब यहां आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे यहां पर आया था फर्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। हाँ अगला बोलो, अगला बोलो फट से। साइन एक्स नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव कहां पर होता है बेटा, साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ। और टैन पॉजिटिव थर्ड एंड फर्स्ट। तो दोनों बातें कहां पर सही हो रही हैं, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों होल्ड कर रहा है, थर्ड में, दोनों स्टेटमेंट थर्ड में। तो ये चारों के आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया थर्ड, ये डी पार्ट का आंसर आ गया थर्ड। ये सी का आंसर सीकेंड और कॉसेकेंड बोथ नेगेटिव, सीकेंड नेगेटिव सेकेंड एंड थर्ड, कॉसेकेंड नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड, ये भी थर्ड आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गई बात आप सबको, ठीक है जी। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कॉस सेकेंड की जो साइन की कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, इन फंक्शंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। और रफली कि कौन से इंटरवल में कौन से एंगल की वैल्यू 0 से π/2 में साइन इंक्रीज कर रहा है, फिर π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में कॉस डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 से 0, फिर 0 से -1, ये सब बातें थोड़ी सी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम लोग कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग रिग्रेस प्रॉब्लम्स करेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी पर, और जो कुछ आज आपने किया है, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, अगर लगे कि कोई चीज दोबारा देखनी है तो आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। और जो आपको शीट गेम्स जो शेयर हुई हैं और टेक्सचुअल असाइनमेंट, उसमें टेक्सचुअल असाइनमेंट 1 एंड 2 और गेम 1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है। टेक्सचुअल असाइनमेंट 1 एंड 2 और गेम 1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे।